Hello everyone, my name is Professor R.S. Sononi, working as Assistant Professor in Civil Engineering Department of SNJB's Let Sau Kantabai Bhavarlalji Jain College of Engineering Chandwad. This is lecture number 3. Before starting the lecture number 3, first we will take a review what we learned in lecture number 2. So in a lecture number 2, we was discussing about what are the important terms in environmental engineering too. Same lecture or same term we will continue in lecture number 3. So today we are going to learn again more important term in environmental engineering too. So today's lecture, the same content here again, important term and the definitions. So the first term in lecture number 3, we can see here the siphonage or siphon or siphonage. This is a very important term. Due to siphonic action, the water seal of a trap sometimes break. It is the result of the sudden discharge of water from the fixture on the upper floor. It is called as siphonage. First, we will try to understand what exactly siphonic action. Then we will discuss about on siphonage. So please see one video here. That video is related to siphonic action. So in this video, you can see this. This is a liquid storage in one pot, that is the uppermost side, and an empty pot which is a downmost side or lower than that uppermost pot. So in this, liquid is drawn into top of pipe by pump or other means. Once liquid in the pipe below level in upper container, flow continues by force of gravity on liquid in a pipe. It can be automatically by gravity due to the gravitational flow continues without any assistance. This overall action is called as what? That is a siphonic action. Is that clear? So siphonic action, that means due to the gravitational force, uppermost liquid which is automatically continuously flow through the downmost side. Due to this siphonic action, the water seal of a trap sometimes break. It is the result of sudden discharge of water from the fixtures on the upper floor. It called as the siphonage. It's a very simple siphonage meaning, यानी कि जो साइफनिक एक्शन की वजह से समटाइम पाइप लीकेज हो जाता है फीचर से और उसका पूरा पानी फ्लोर के ऊपर आ जाता है. दिस ओवरऑल टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज siphonage. Is that clear? So next term is the anti-siphonage pipe. It is the pipe installed in house to prevent siphonage by providing proper ventilation. So that is the one most pipe which is provided into the to prevent the siphonage by providing a proper ventilation pipe. So if that pipe is some ventilations, then siphonage action can be prevent. So that this term is called as the anti-siphonage pipe. यानी कि क्या हो जाता है, सबसे पहले समटाइम साइफनिक एक्शन ना हो इसलिए फ्री वेंटिलेटर पाइप प्रोवाइड किया जाता है, उससे साइफनिक एक्शन नहीं होता है, यानी कि वाटर लीकेज नहीं होता
वाटर फीचर से कोई भी वाटर आ नहीं जाता, बाहर नहीं आता, इसकी वजह से उसको बोलते हैं हम एंटी साइफनेज पाइप. दिस इज द सेकंड टर्म इन दिस टूडेज लेक्चर. The third term in today's lecture, the vent pipe. The pipe carries the discharge from sanitary fitting like bathroom, sink, kitchen, etc. ऐसा जो पाइप कि वो किचन से और सैनिटरी फिटिंग से पूरा का पूरा डिस्चार्ज कॅरी कर सकता है, उसे बोलेंगे हम व्हेंट पाईप. असा पाईप की किचन मधनं किंवा बाथरूम मधलं पाणी किंवा घाण पाणी वाहून नेऊ शकतो, त्याला बोलूया आपण व्हेंट पाईप. Next definition or term, the invert, the lowermost level of sewer is called as its invert. That means if there is a one circular level, that means there is a one circular pipe or sewer. So I draw here one circular sewer, and this is their lowermost level of a liquid, which is called as a invert of this sewer. Is that clear? इथे मी सर्क्युलर शेपचा एक सीवर घेतलेला आहे, त्याची लोअर मोस्ट लेवल जी असेल which is called as the invert. Is that clear? It's called as the invert. Now in the next term you can see here the rubbish. Already previous lecture we discussed about refuse. The same meaning of this rubbish, that is all the sundry solid waste material such as paper, broken glass, broken furniture, waste building material, etc. It is commonly called as a rubbish. Rubbish यानी कि जो solid waste material रहते हैं. Once again I focus on here is a solid waste, not a liquid waste. कौन सी solid waste? जाने की पेपर, कटिंग पेपर रहते, ब्रोकन ग्लास रहते, ब्रोकन फर्निचर्स के टुकड़े रहते, वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल रहते, इन सब को हम कॉमनली बोल सकते हैं रबिश. म्हणजेच काय, इथे सॉलिड वेस्ट असलेले मटेरियल, लिक्विड वेस्ट नाही, द्रव स्वरूपातले नाही, सॉलिड स्वरूपातले असलेले मटेरियल की जेणेकरून कटिंग केलेले पेपर, तुटलेले ग्लासेस, तुटलेला काचा, तुटलेले फर्निचरचे तुकडे आणि वेस्ट असलेले मटेरियल, या सर्वांना आपण रबिश म्हणू शकतो. इज दॅट क्लियर? सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सेवरेज. सो प्रीवियस लेक्चर we learn about sewer. Now this sewerage is nothing but as a sewer. So we can see here the total system of collection and the carrying the sewage by water carriage pipe in bracket sewer is called as a sewage. It's called as a sewerage. Sorry, make a correction here. It's called as a sewerage. यानी कि जो पूरा वेस्ट वाटर का कलेक्शन और उस वेस्ट वाटर का फ्लो सिस्टम कैरी कर सकता है वन पाइप में, उसको बोलेंगे हम सीवरेज. इज दैट क्लियर? दैट मींस इट्स अ कलेक्शन एंड द कैरिंग ऑफ सीवेज by means of one pipe. That pipe or that system is called as a sewerage. Is that clear? Now most important term in this unit, that is bacteria. So many of time we heard about bacteria. Somebody says there is a bacteria, due to the bacteria it's very effective for human beings. At that time, first we will try to understand what's the exact meaning, what's the exact concept of the bacteria. As per the environmental engineering point of view, the bacteria is the microscopic unicellular plant or the organism. So if we discuss in a Marathi or Hindi, we can say is microscopic, सूक्ष्म कण जो डोळ्यांनी बघू शकत नाही, अतिसूक्ष्म तो मायक्रोस्कोपिक द्वारे बघू शकतो. इट्स कॉल्ड मायक्रोस्कोपिक. unicellular means in a single cell plant or a organism. Organism is nothing but as a जीव. In Marathi we can say is that is जीव. And unicellular is a single पेशी असलेला
एक पेशी असलेला जीव की जो आपण उघड्या डोळ्याने बघू शकत नाही, अशा जीवाला म्हणतो आपण बॅक्टेरिया. इज दॅट क्लिअर? So here is section of bacterial cell. So many times the shape of bacteria in form of the capsule. बहुतेकदा बॅक्टेरियाचा शेप हा जे सायंटिस्ट आहे त्यांनी त्याचा शेप डिझाईन हा किंवा त्यांनी जे इन्व्हेंट केलं आहे सायंटिस्ट लोकांनी, बॅक्टेरियाचा शेप मोस्टली हा कॅप्सूल टाईपचा असतो. and this is the internal structure of a bacteria. You can see the shape of bacteria is a capsule. Then this is a cell wall. You can see here that is the DNA converted into the nuclear. Then this is a flagellum, ribosome. You can see is all details structures of a bacteria that is not important for the environmental point of view. This is related to the medical science part. Is that clear? So this is for your awareness. So I put here this figure or this picture of a bacteria. So most important, what we have important, the bacteria is what? That is a microscopic unicellular plant or organisms. So in next, that bacteria classified as first aerobic bacteria, second anaerobic bacteria, and third one is facultative bacteria. Is that clear? So bacteria have classified this in these three phases. So first we will discuss about aerobic bacteria. The aerobic bacteria is need light and the free oxygen for their existence and the development. So aerobic bacteria आपण म्हणू शकतो. Actually bacteria हा 3 फेज मध्ये वर्गीकरण केलेला आहे. तो पहिला फेज आहे एरोबिक, दुसरा आहे anaerobic आणि तिसरा आहे फॅकल्टेटिव्ह बॅक्टेरिया. तर पहिल्या बॅक्टेरिया बद्दल आपण जर बोलू शकतो की पहिला बॅक्टेरिया हा लाईट अँड फ्री ऑक्सिजन दर, पहिल्या बॅक्टेरियाला लाईट आणि फ्री ऑक्सिजनची गरज असते, खूप कमी प्रमाणात आणि ऑक्सिजनची गरज असते. कशासाठी? की विच इज फॉर एक्झिस्टन्स अँड द डेव्हलपमेंट, त्याला स्वतः डेव्हलप होण्यासाठी. दिस इज कॉल्ड ॲज अ एरोबिक बॅक्टेरिया. दॅट मीन्स those bacteria required free oxygen, which is called as aerobic bacteria. Exact vice versa, the next classification that is anaerobic bacteria. They do not need light and the free oxygen for their existence and the development. Those bacteria doesn't need of light, of oxygen or free oxygen till they can existences and the development. असा बॅक्टेरिया की त्याला ऑक्सिजनची गरज नसते तरी पण तो जिवंत राहू शकतो किंवा तो डेव्हलप होऊ शकतो, which is called as what? Anaerobic bacteria. The third one classification of bacteria, that is facultative bacteria. They can survive in both conditions, that is presence or in absence of oxygen, but generally they have very fast growth in absence of oxygen. असा बॅक्टेरिया की तो दोन्ही फेज सर्वाइव्ह करू शकतो. कदाचित तो बॅक्टेरिया ऑक्सिजन घेऊही शकतो, कदाचित नाही घेऊ शकतो. अशा बॅक्टेरियाला आपण फॅकल्टेटिव्ह बॅक्टेरिया म्हणतो. बट जनरली दॅट बॅक्टेरिया व्हेरी फास्ट ग्रोथ, खूप जास्त प्रमाणात वाढू शकतं इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. सो this is the 3 classification of a bacteria. And next term, before discussion of this term, nowadays we are facing very dangerous situation in a lockdown or unlockdown period, that is related to the virus. So this is not part of our syllabus, but for your more awareness. So we can see here word of virus. So first, what's exactly virus? Concept of virus. A virus is a submicroscopic infectious agent that replicates only inside the living cell of an organism. Viruses can infect all types of life forms from animals
and the plant to microorganism including bacteria. असा घटक की तो अतिसूक्ष्म असून तो इन्फेक्टेड किंवा प्रदूषित सेलला डॅमेज करतो किंवा ऑर्गॅनिझमला डॅमेज करतो, अशा घटकाला आपण व्हायरस म्हणतो. आणि असा व्हायरस सर्व प्रकारच्या जे सजीव आहेत, इट मे रिलेटेड टू ॲनिमल्स किंवा प्लांटच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमला इन्फेक्ट करू शकतो, इन्क्लुडिंग बॅक्टेरिया. इज दॅट क्लिअर? तर त्याला म्हणायचं आपण व्हायरस. फॉर more awareness of a virus, we can see here one video. Hi, have you always wanted to learn to cook, but don't know where to start? Would you like to make... क्या आप एक ऐसे जीव की कल्पना कर सकते हैं जो सजीव भी हो सकता है और निर्जीव? Please, कहने का मतलब है कि एक ऐसा please see carefully about a virus in Hindi. जो मौका मिलने पर जीवित हो जाता है और मर भी जाता है और मरकर जीवित भी हो सकता है, वो चीज है वायरस. वायरस एक ऐसी चीज है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है, जो जीवित चीज के संपर्क में आने पर जीवित हो जाता है. जीवित कोशिका से दूर रहने पर एक निर्जीव चीज बनकर रह जाता है. आप ये बात तो जानते ही हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज जीवित है वो सभी चीजें बनी हुई होती हैं जीवन की छोटी इकाई सेल यानी कोशिका से मिलकर. कोशिका के अंदर ही जीवन की जो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है. पर ये जो वायरस है ना, ये किसी प्रकार के सेल से बना नहीं रहता है. ये एक एसेलुलर यानी एक अकोशिकीय चीज है ना. कमाल की चीज, एक ऐसी चीज जो हमें बीमार बना रहा है, जो कि एक इतना खतरनाक चीज है. वो जीवित चीज है ही नहीं, वो एक अजीब चीज है. आइए जानते हैं इसके बारे में भी जानकारी कि वायरस इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव है. इतने छोटे होते हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया के पास आंखें भी होंगी ना, तो भी वो इन वायरसेस को कभी देख नहीं पाएंगे. खैर, अब आप इस वायरस के साइज का अंदाजा लगा पा रहे हैं. तो चलिए एक बार इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि आखिर ये वायरस बने कैसे होते हैं. वायरस दरअसल एक प्रोटीन के दीवार से घिरे रहते हैं, जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ भरे रहते हैं, जो कि होते हैं आरएनए या डीएनए. और यही जेनेटिक मटेरियल वायरस को किसी जीव के शरीर में घुसकर उन्हें मल्टीप्लिकेशन के जरिए एक से लाखों बनने में मदद भी करता है. और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जब आप किसी वायरस को किसी जीवित कोशिका के बाहर यानी निर्जीव अवस्था में पाएंगे, तो आप उसे क्रिस्टल की तरह इकट्ठा भी कर सकते हैं, जैसे एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही ठोस कण के लिए. ये सैकड़ों साल तक निर्जीव रहने के बाद भी जिंदा रहता है. और वायरस को हम अपने दैनिक जीवन में हर एक सेकंड में अंदर सांस के जरिए या किसी और तरीके से अपने अंदर लेते ही रहते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हैंडल करता है. चलिए जानते हैं कि जब कोई वायरस हमारे शरीर में घुस जाता है तो वो करता क्या है हमारे शरीर में. देखिए, इस वीडियो में एक व्यक्ति छींक रहा है और उसके छींक के ड्रॉपलेट में बहुत ही छोटे छोटे वायरसेस होते हैं. जब एक व्यक्ति छींकता है तो उसकी छींक में हजारों वाटर ड्रॉपलेट्स सकती है. जरा सोचिए कितने सारे वायरस एक छींक ड्रॉपलेट में होती है. अब यहाँ बैठे व्यक्ति इन वायरस वाले ड्रॉपलेट को अपने अंदर अपने सांस के जरिए अंदर ले लेता है. और जैसे ही वायरस शरीर के अंदर गया तो शरीर के अंदर सेल के पास जाता है. इन वायरस के ऊपर एक उभरी हुई आकृति होती है, जिसे जनरली कीस कहते हैं. और जिस सेल के पास से जाता है बाइंड होने के लिए, उसके ऊपर भी एक उभरी हुई आकृति होती है. और ये आकृति भी डिसाइड करती है कि ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट कर सकता है कि नहीं. कि हर वायरस हर तरीके के सेल के साथ बाइंड होता है. जैसे ही वायरस का की इसके साथ बाइंड होता है, वो सेल के अंदर घुस जाता है. और एक बार वायरस शरीर के अंदर घुसा, वो अपने अंदर मौजूद प्रोटीन की मदद से, हो सकता है डीएनए या आरएनए, और भी वायरसेस को कॉपी करने लगता है. वायरस का रेप्लिकेशन सेल के अंदर 7 स्टेज में होता है. पहले मनुष्य वायरस अब्सॉर्ब करता है, फिर वायरस का सेल में होता है. उसके बाद वायरस के ऊपर प्रोटीन का लेयर अनकोटेड होता है. फिर इसके
चौथे स्टेज में वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसक्रिप्शन होता है। वायरस में न्यूक्लिक एसिड उस सेल को मैसेज करता है जीनोम का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इसके बाद पांचवें स्टेज में नए बने जीनोम का सिंथेसिस होता है, जिसके वायरस के न्यूक्लिक एसिड को घेरने के लिए प्रोटीन के लेयर आरएनए या डीएनए पर कट जाते हैं। फिर छठे चरण में इन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का असेंबल होता है और सातवें चरण में ये वायरस के कण सेल से बाहर निकल जाते हैं। फिर ये दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करते जाते हैं और एक से करोड़ों की संख्या में बढ़ते जाते हैं। ये बढ़े हुए वायरस की संख्या शरीर के हर एक सेल में जाती है और उन्हें इन्फेक्ट कर अपनी संख्या और भी बढ़ाती है। बट हमारे पास हमारा अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है जो इन वायरसेस से हमेशा लड़ता रहता है। वो है हमारा इम्यून सिस्टम जो इन वायरसेस से लड़ता रहता है। और जब कभी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है जो इन वायरसेस से लड़ नहीं पाता है, तो हमारा ब्रेन शरीर का तापमान बढ़ाकर उन्हें मारने का काम करता है, जिसे हम बुखार कहते हैं। तो अब आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि वायरस होता क्या है, ये काम कैसे करता है और हमें इन्फेक्ट कैसे कर सकता है। और इस समय आप ये बात तो जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस कितना ज्यादा व्यापक संकट बना हुआ है हमारे। मैं आपको अगले वीडियो में कोरोना So this is about virus, and nowadays we are the facing of a COVID virus. It may very well helpful to all of you. Please be safe. Stay at home. Thank you. Thank you. Thank you very much.